विष्णु, थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए। Afternoon, sir. How are you? Sir, I am fine. Am I audible to you, sir? Yes. हाँ विष्णु, Sir, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। sir, my name is Vishnu Verma. My home state is Uttar Pradesh. I am from Prayagraj. Sir, I have done my class 10th and 12th from CBSE board. After that, I have pursued my graduation from BCom. I have pursued my graduation in BCom and LLB in 2015 and 2018 respectively. After completion of my LLB, I have worked as a law clerk trainee in an Honorable High Court of Judicature at Allahabad. After working as law clerk trainee, I took admission in LLM in the year 2019, and my LLM completed in 2021, sir. In presentation, one sentence of your reply is not correct. Because you have replied that I have done graduation in BCom. It is not correct. BCom itself is graduation. Your answer should be I have done my graduation in commerce. Okay, sir. BCom means Bachelor of Commerce. तो विष्णु, Yes, sir. मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शररी? Sir, the writ of prohibition says is the power with the High Court where it says, sorry, sir, the writ of prohibition is where the court हमारा पसंदीदा विषय कल orders the lower court to not to proceed with the case, and in the certiorari they have a glance at the order which has been passed. एफआईआर के बारे में पढ़ा है आपने? Yes, sir. कितने तरह की एफआईआर होती है? Sir, under section 154 of CRPC, where an information is given by a person, and under section 155 of CRPC, when information is given by any other person with respect to non-cognizable offense. तो नहीं, क्रॉस एफआईआर, जीरो एफआईआर, ये सब होता Yes, है ना, होते हैं, क्या होती है? Sir, in zero FIR, the person who is person has a right to lodge FIR irrespective of the forum. अच्छा, ठीक है। लॉ क्लर्क ट्रेनी के रूप में आपने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, क्या सीखा आपने, क्या आपका तजुर्बा रहा? Sir, while working as a law clerk trainee, I had the opportunity to sit at the honorable courtroom with the honorable justice present there and watch the proceedings going on. Sir, like the court which I was associated with was used to deal with the minor bail applications. So I had got the opportunity to look at them and learn from them. Apart from this, when the honorable court has passed any judgment, then I used to have a look on the judgments, that is there any clerical or any other arithmetical mistakes, and inform the What is minor bail and what is major bail? sir, the minor bail and the major bail basically was associated with the type of offense, the punishment which has been prescribed for the offense, the gravity of the offense. Who has differentiated it? Who has made a differentiation in the offenses, classifying? Who has classified offenses as minor and major? Sir, if we look at the second schedule of the CRPC, then we find the columns prescribing the area of punishment and whether it is a cognizable or non-cognizable. That is the complete detail of the nature and punishment prescribed in a specific offense. Now you have said that the court which you are associated was to dispose of the bail, minor bail application. You have Yes. used the term minor bail application. But then from where it has been differentiated that this offense is minor offense, this offense is major offense? Sir, I would like to try this answer. I don't know it, but I think the Honorable Chief Justice of the Associated High Court is known as the master of the roster, so he prescribed where the case will go. That is the roster prepared under the direction of the Honorable Chief Justice.
Now I am telling you the answer. Yes, sir. Since you have been law assistant in Honorable High Court, you should know that the High Court has made rules of itself. Then in High Court rules, there are classification of minor offences and major offences. Then minor offences shall be heard by a single bench, and major offense, major bail application can be heard either by single bench or by double bench. So then it is the classification done by the Honorable High Court. Okay, sir. और किसी लॉ में नहीं है, ये हाई कोर्ट ने इसको क्लासिफाई किया है, ओनली टू फिक्स द रोस्टर। अच्छा, हमें आप बताइए कितने तरह की कोर्ट काम करती है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में? Sorry, sir. क्रिमिनल या सीआरपीसी में अगर आप क्लासेज, आप कोर्स बताइए कौन कौन से कोर्स फंक्शन करती हैं अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी? Sir, as per Section 6 of the CRPC, the provision is made that the apart from High Court, there shall be a court of. Tell me the list of the courts. Give me a list of the courts established in CRPC apart from Honorable Supreme Court and High Court. Sir, the Court of Sessions Yes. and Court of Judicial Magistrates. Any other? Sir, as far as I can recall. Court of Session, Court And of sir- Session, Court of Assistant Session Judge, Court Yes. of Judicial Magistrate, the Courts of Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate. Courts of Judicial Magistrate First Class, oblique Metropolitan Magistrate, Court of Judicial Magistrate Second Class, and Court of Executive Magistrate. Now, what is distinction between जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट? क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर में कोई अंतर है? No, sir, there is no difference in the power, but only in the area of where they are working. कहाँ Yes. पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं? किस शहर में, किस जिले में, कहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है? Sir, the guiding principle for this is given in the Section 8 of CRPC, where it says that where the population of the city division is greater than more than 10 lakh, where it crosses more than 10 lakh, then there the More than 25 lakhs. पहले था 10 लाख। पहले 10 लाख था, अब जो है 2015 से अमेंड हो गया है, अब मोर देन 25 लाख। क्योंकि अगर पुराना रखा जाता तो हर जिला ही जो है मेट्रोपॉलिटन हो जाता। हाँ, लगभग सभी जगह लगभग सभी मेट्रोपॉलिटन हो जाएंगे, इसलिए उसको बढ़ा दिया गया, 25 लाख कर दिया गया। जहाँ जिस शहर, जिस जिले की आबादी, जिस सिटी की आबादी, शहर जिला नहीं सिटी की आबादी 25 लाख या उससे अधिक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में नोटिफाई करता है, फिर वहां पे नियुक्ति होती है। अच्छा, आई थोड़ा सा एविडेंस एक्ट में मैं आपको ले आता हूँ। एक डिफिनीशन है जिसमें 3 फैक्ट दिए गए, फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड एंड फैक्ट नॉट प्रूव्ड। इन तीनों में क्या डिस्टिंक्शन, क्या डिफरेंस है, अंतर है? फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड एंड फैक्ट नॉट प्रूव्ड। Sir, a fact is said to be proved when, after considering the matters before it, a court either believe it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a case, that it exists. वेरी गुड, वेरी गुड। और डिसप्रूव्ड? A fact is said to be disproved when, after considering the matter before it, court does not believe it to exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the case, would believe that such situation doesn't exist. And sir, when the fact is neither proved nor disproved, then it is called not proved. वेरी गुड। एक कपुल, एक मैरिज होती है, लड़के और लड़की की मैरिज होती है। दे मेट विद द फर्स्ट नाइट, और लड़की लड़के से कहती है कि मिस्टर यक्स, वो दोनों सिटी के ही रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ सिटी के ही थे, लखनऊ सिटी के दोनों, उसका मैरिटल होम और पैटर्नल होम दोनों लखनऊ सिटी में। उसने ये बताया कि फला हमको शुरू से छेड़ता रहता था, अब भी छेड़ता है। हस्बैंड ने कहा तुम किसी को बताना नहीं। आज वो सुबह 4 बजे निकलता अपने ट्यूबवेल की तरफ, आज ही मैं जाऊंगा, उसको समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट डे हिज डेड बॉडी, पर्सन जिसको उसने कहा था मैं मार दूंगा, उसकी डेड बॉडी ट्यूबवेल के पास से रिकवर्ड होती है, और वो डेड बॉडी 2 पार्ट में है, और उसी के बगल में रेलवे लाइन है।
एक पार्ट रेलवे लाइन के इस तरफ है, एक पार्ट रेलवे लाइन के उस तरफ है। इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बॉडी के 2 पार्ट हैं वो पोस्टमार्टम इंजरी पाई जाती है, यानी मरने के बाद, और उसका काज ऑफ डेथ गला घोटने से बताया गया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और ए हस्बैंड अरेस्ट होता है और कोर्ट के सामने ये भी बुलाया जाता है कि इसने अपने वाइफ को बुलाया जाता है और वाइफ का स्टेटमेंट है कि इसने कहा था अपनी वाइफ से कि मैं जा रहा हूं, उसको मैं खत्म करके आ जाऊं। नाउ द हस्बैंड में अक्यूज क्लेम्ड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये चूंकि हमारे और वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन है इसलिए इसको हमारे खिलाफ प्रूव नहीं किया जा सकता। व्हाट इज योर व्यू? आपने सिचुएशन समझ लिया Yes, sir. कि आपका क्या व्यू है? Sir, I think the claim made by husband is correct because during the subsistence of the valid marriage under section 122, the communication which is made between the husband and wife is not eligible for any kind of declaration to be made in the court. बट उसके नीचे प्राविजो भी है, परंतुक भी है। प्राविजो क्या कहता है? Sir, as far as I can recall, it says that with the consent of the parties, they may disclose the facts or where. But if the communication relates preparation of any offense, attempt of any offense, execution of any offense, then it is cannot be said that it is out of privileged communication. उसने ये नहीं कहा कि मैंने किसी को मारा था या मैंने किसी को मार दिया है, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं उसे खत्म करके आऊंगा। मीनिंग देयर बाय ये कम्युनिकेशन किसी क्राइम के प्रिपरेशन का है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्राइम जो होगा वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आ सकता, वो प्रिपरेशन कम्युनिकेशन में नहीं आ सकता, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में। ठीक है ना? Yes, So any communication between the husband and wife, any communication between client and liar, yes, sir. is privileged communication provided the communication is not regarding the preparation of further crime, preparation of subsequent crime. A client says his counsel, वकील साहब मैं जा रहा हूँ कल, वो जो मुकदमा बहुत लड़ता हमारे खिलाफ मैं उसको मार दूंगा कल, और बाकी आप बचाने का काम आप उसको करिएगा। क्या ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है? No, sir, this is not a privilege. Why? Because it is communication between client and counsel. Sir, Again the question, again the answer comes, since it is information regarding preparation of crime, preparation for commission of crime, इसलिए ये privilege communication में नहीं आ सकता। No person can be compelled to be witness against himself. कुछ आइडिया है आपको? किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध yes, sir. साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। Yes, sir. क्या उस व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट? क्या उसका संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? Sir, under Article 20, subclause 3, it is a constitutional right, and also if we look at Section 161, subclause 3 of CRPC, subclause 3 of CRPC, then here it says that person acquainted with the facts and circumstances of the case would not be compelled to give answer to any question which might criminate him or will tend to him in any forfeiture or penalty. So I think it is both the legal right as well as the constitutional right. Legal right as well as constitutional right. Where is legal right and where is constitutional right? Sir, constitutional right in Article 20, subclause 3. Or legal right? Sorry, sir. Right. Oh, no. Go Section 25 evidence side. Section Any 20. confession made before the police officer, Yes, sir. made before the police authority, cannot be admissible by court. ये किस सिद्धांत पे है आधारित है? ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है? Because a person has been given fundamental right under Article 20 subclause 3 that he cannot be compelled to give evidence against himself. ठीक है ना? Yes, sir. आपका राइट आंसर ये होगा कि he enjoy constitutional right always, but in any criminal prosecution, then he gains his legal right by way of Section 25 you can say. Yes. विष्णु, Yes. हस्बैंड ने जो सर ने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मैं जा रहा हूं और उसको ट्यूबवेल के पास में मार दूंगा जाके, ये स्टेटमेंट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में तो नहीं आएगा। क्या पति के द्वारा ये पत्नी को जो दिया गया स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट होगा या नहीं रेलेवेंट होगा?
Sir, this statement will be relevant as it was made before the commission of crime. Sir, कहाँ पर it is- relevant होगा? sir, it may be relevant under section 6 like res geste. ना, सिस्टम में तो नहीं है। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है और इमीडिएट बिफोर होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी इमीडिएट बिफोर ऑफ द इंसिडेंट। ऐसा तो कोई टाइम तो यहाँ पर बताया नहीं गया। दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21 एज एडमिशन ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इस पे एक केस भी आया था, बलेश्वर सिंह का केस था, बलेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ठीक है, सेम स्टेटमेंट जो बताया है कि एडमिशन ऑफ कंडक्ट, ये एडमिशन ऑफ कंडक्ट है, ये सेक्शन 21 में रेलेवेंट है। ठीक है, और अच्छा मुझे ये बताइए सेक्शन 161 सबसेक्शन 2, इसमें ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो उसे खुद प्रोसीडिंग में फंसा रहा। दूसरी तरफ हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 132 पढ़ते हैं जिसमें कंपेल्ड विटनेस का प्रोविजन किया गया। क्या इन दोनों में किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? Sir, there is no contradiction between them because section 161 clause 3 talks about the person acquainted with the facts and circumstances. ये करेक्ट कर लीजिएगा, 3 नहीं, पुलिस ऑफिसर में रेड्यूस सच स्टेटमेंट इन राइटिंग, ये बात करता है सबसेक्शन 3। ठीक है, 2 बात करता है Okay. बाउंड नहीं किया जाएगा। हाँ, आप बताइए। So, sir, there under section 161 clause 2, he is person acquainted with the facts and circumstances of the case. So, sir, in order to gain information from the or during the investigation, so one cannot be criminated. Or where such a situation lies, then he might not be willing to give the information which he has. But under section 132 of Indian Evidence Act, we find that he is a witness, and because he is a witness, and he is going. That's why he is made. He is compelled to give the answers. The person who is acquainted with the facts and circumstances of the case, क्या हम उसको विटनेस नहीं कह सकते? Yes, sir. If he is involved in he is made as a witness during the trial, then he is witness. अच्छा, सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन? ठीक, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो अगर कोई सेक्शन नहीं पता, 161 आपने आंसर दे दिया था, सफिशिएंट था। ठीक है, क्लॉज अगर नहीं पता है तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए 161 में पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन पूछता है इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक, जब हम 132 की बात करेंगे तो जजेस किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो जो राइट मिला हुआ है वो अक्यूज्ड को राइट मिला। ठीक है, तो अक्यूज्ड को बाउंड नहीं किया जा सकता है, और इस पे केस किया आया था नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी का केस आया था। ठीक है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनको बाउंड किया था पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए, कोई विटनेस पुलिस ऑफिसर को किसी भी नॉर्मल स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे रहा है, क्या उसकी इंडियन पिनल कोड में लायबिलिटी बनाई जा सकती है? Sorry, sir, I cannot recall. सेक्शन 179। ठीक है, ठीक है विष्णु, योर इंटरव्यू इज ओवर. You have performed very well. You have given answers to all the questions quite satisfactorily. Satisfactorily, and we are satisfied with your preparation, but only practice required. अभी तुम लोग की नहीं तो डेट नहीं आई है. अभी डेट तो है नहीं, एक बार बेयर एक्ट पूरा पढ़ लो, बैक देख लो। देखो बेयर एक्ट के जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस कोट मत करो, लेकिन अगर सेक्शन कोट करो तो सही सेक्शन, बिल्कुल सही सेक्शन कोट करो, क्योंकि सेक्शन सही है गलत है ये तो तुम्हें टेस्टिफाई किया जा चुका है तुम्हारे रिटन एग्जामिनेशन में। अब यहाँ इंटरव्यू में तुम्हारा कंसेप्ट देखा जाता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आवश्यक नहीं है कि आप स्पेसिफिक सेक्शन को कोट करें, क्योंकि सबको सारे सेक्शन याद हो ये मान के चला जाता है, जरूरी नहीं है, याद नहीं होता है। ठीक है ना, बाकी आप गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट. I hope, we hope that you will see in your future in you a judgeship. You will be a judge. What will be your post when you get the appointment letter? What designation will you get?
Well, junior division, civil judge, junior division, I think. So why you are so laughing? It is a very serious post. Huh? Yes. Very serious post. And you will get a per around 1,75,000 per month, including all the facilities, all the perks, all the monetary benefit. And for that post, you are laughing. Junior division and civil. Okay. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. तो आपने LLB किया, LLM आप सेकेंड ईयर में हैं, जी सर। तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि राज्य की परिभाषा में जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, क्या न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आती है या नहीं आती? सर इस पे 2 हाई कोर्ट का मतभेद था, लेकिन वर्तमान समय में इसको न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं माना जाता है। AR अंतुले बनाम महाराष्ट्र राज्य एक बात था, इसमें कहा गया न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। फिर इस नरेश RS नायक बनाम स्टेट एक बात था, उसमें कहा गया न्यायपालिका आता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं कुछ केस लॉ आपको पूछ रहा हूं, उनमें क्या निर्णय आया है, एक एक लाइन में मुझे बताइए। नवतेज जौहर, इस्माइल फारूकी, यंग लॉयर्स एसोसिएशन और शाइनी जोसेफ। जी सर। इन 4 मामलों में एक एक लाइन में बता दें क्या निर्णय आया। नवतेज जौहर में IPC की धारा 377 को वैलिड करार किया गया है। वैलिड करार किया? जी सर, इनवैलिड करके खत्म कर दिया गया, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो अपने साथ किसी भी पार्टनर के साथ रह सकता है, लिव इन को इसमें परमिटेबल किया गया है। 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है सर। नहीं, 377 में समलैंगिक संबंधों को केवल जो है अपराध की श्रेणी के बाहर किया, तो इसे अपराध की श्रेणी के बाहर कर दिया गया सर। ठीक है, और बताइए। इस्माइल फारूकी के बाद में अयोध्या मामला से संबंधित था सर। इसमें अयोध्या की जो टाइटल से संबंधित डिस्प्यूट था, इसे डिसाइड किया गया था। और जोसेफ साइन में 497 एडल्टरी जो अपराध घोषित था उसे खत्म किया गया सर। इसमें कहा गया कि प्रत्येक पुरुष के साथ स्त्री को अपनी सामर्थ्य से किसी के साथ, इसमें ये एक क्लास जोड़ा गया था सर कि स्त्री पुरुष के इच्छा के बिना, तो इसे कहा गया नहीं, वो पुरुष के अधीन नहीं है, इसे समाप्त किया गया। कौन सा सेक्शन है ये? 497 भारतीय दंड संहिता। और यंग लॉयर्स एसोसिएशन? सर नहीं पता। अयप्पा मंदिर का विवाद सुना है आपने? जी सर। अयप्पा टेम्पल सबरीमाला। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया सर। दीपेंद्र जी सर। इस्माइल फारूकी के मामले में अयोध्या से संबंधित कुछ मैटर डिसाइड हुआ था। जी सर। अब क्या आपको आइडिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लच क्या दिया था, जिसको हम एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो लेट डाउन हुआ इस जजमेंट में, कुछ आप प्रकाश डालेंगे? जी सर, ये एक टाइटल वाद था जिसमें अयोध्या में राम जी का जन्मभूमि था कि नहीं था, इसी को डिसाइड किया गया था। और वर्षों से उनका वो पुराणों या फिर अन्य से उन पर उनका कब्जा था, इसलिए राम जी के पक्ष में फैसला दिया गया था राम जन्मभूमि को। इसको उनके जो उस पे काबिज थे उनको। ये इस्माइल फारूकी तो एंसिलरी सूट था, जो मेन सूट तो दूसरा सूट था, वो बाबरी एक्शन कमेटी का दूसरा सूट था। इस्माइल फारूकी में मेनली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो लेट डाउन किया, दैट इज डिपेंड ऑन द सिविल प्रोसीजर कोड। जी कुछ आइडिया है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ आइडिया है? नहीं सर, सॉरी सर। Supreme Court has held that it is the duty of the court to protect and preserve the property in dispute during the pendency of the suit, and for that purpose, the order maintaining status quo or injunction order can be passed at any stage by the court. Yes, sir. It is the main principle of law laid down by the Supreme Court कि इसका प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, ये जो है कोर्ट की लीगल ड्यूटी है। इसके लिए चाहे एप्लीकेशन आए चाहे एप्लीकेशन न आए, किसी भी स्टेज पर वो स्टेटस को का ऑर्डर या इंजंक्शन ऑर्डर जारी करता है। दीपेंद्र जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था जो आपने लिया था? सर, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी, जस्टिस, हिंदू और मुस्लिम लॉ। एक बड़ा ही फेमस मैक्सिम है, A person who comes before the court for equity
he must come with a clean hand. जी सर। एक लेटेस्ट कोई जजमेंट आया है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। मैं आपको चंद्र कुमार का जो है रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चंद्र कुमार सर, इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को स्थापित किया गया था। No institution or the parliament cannot take the power of the high court of the judicial review, and it is the duty of the court to see whether the person has come with a clean hand, because if there is a concealment of fact, he will not be entitled to get any injunction order or any equitable relief. अच्छा दीपेन जी, ऐसे कितने मामले हैं जिनमें केवल डिक्लेरेशन ही मात्र सफिशिएंट है, केवल डिक्लेरेशन का ही रिलीफ मांगा जा सकता है, अन्य कोई रिलीफ नहीं मांगा जा सकता है? किसी व्यक्ति की प्राय स्थिति से संबंधित जो वाद होता है उसमें डिक्लेरेशन सर जारी किया जा सकता है। स्टेटस सर। कौन सा स्टेटस? मैरिटल स्टेटस, लीगल स्टेटस, ऑफिशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस? सर कोई भी स्टेटस से संबंधित कोई भी वाद होता है तो उस पर घोषणात्मक डिग्री लाया जा सकता है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कहीं जज को डिफाइन किया गया है? क्या परिभाषा जज की दी गई? सर याद नहीं है। चलिए, एनी पर्सन हु इज लीगली पावर्ड टू टेक एविडेंस इज नोन एज जज। यस सर। कोई भी व्यक्ति जो लीगली एविडेंस लेने का, एविडेंस रखने का, एविडेंस टेक करने का, एफिडेविट लेने का जो इम्पावर, जैसे आर्बिट्रेटर वो केवल एविडेंस लेता है, वो भी जज है। समझ गए आप ना? ट्रिब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तो जज ही है, लेकिन ट्रिब्यूनल का भी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो भी चूंकि एविडेंस लेता है। व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग? न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही होती है उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। एंड व्हाट इज कोर्ट? न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं, इसके अंतर्गत मध्यस्थ नहीं आते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सर्वेंट? लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता के धारा 21 में दी गई है। लोक सेवक से वह कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है या फिर किसी स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी संस्था में कार्य करता है। अच्छा, क्या जज आता है पब्लिक सर्वेंट में? क्या जज पब्लिक सर्वेंट में आता है? जी सर, जज को पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत मानते हैं। कहाँ माना गया? जी सर, किसी वाद में कहा गया था। किसी वाद में कहा गया था सर। सेक्शन 21 इंडियन पेनल कोड नहीं कहा गया है। पहला ही पब्लिक सर्वेंट जज को बताया। जी सर। जी सर। अच्छा, ये कभी लास्ट जजमेंट आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इलीगल and unnecessary harassment of a public servant. Therefore, it is the bounden duty of the state but through the appointing authority to look entire evidence coming against the public servant and then to decide the matter and to give appropriate sanction. ये CRPC के किस सेक्शन को रिफर किया है सुप्रीम कोर्ट? सॉरी सर, नहीं पता। नहीं पता सर। सेक्शन 197। जी सर। What is provided under section 197? न्यायाधीश और लेख सेवकों के अभियोजन से संबंधित है। हाँ, क्या है उसमें? No court shall take cognizance without to prosecute against a judge or a public servant or a person appointed with the affairs of the government state without sanction of the appointing authority. ये दिया गया है। और इसी व्यू में आने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जी सर, इसका ऑब्जेक्ट उनको प्रोटेक्ट करना है जो अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन करता है। पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम अननेसेसरी हैरेसमेंट। जी सर। अननेसेसरी हैरेसमेंट। भाई बहुत निहायत ईमानदार अधिकारी है, उसके खिलाफ लोग कॉन्स्पिरेसी करके कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, ये करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से बगैर पेंशन के आप ये बताइए कि एक मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है ये चार्ज था, तो उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के मामले में इतना घोटाला करवाया था जो कि अरबों में गया था। आपको केस याद है? केस मालूम है? 2G स्पेक्ट्रम मामला आपको मालूम है? जी सर, मामला
ये स्पेक्ट्रम से संबंधित विवाद था जिसमें अवैध तरीके से लाइसेंस प्रदान किया गया था किया गया था। और इसमें सरकार को क्षति हुई थी। Who was the main accused? सर नहीं पता। Mr. A. Raja. A. Raja Kalimoji. Then the A. Raja and the MLA Kalimoji. A. Raja was then communication minister in central government, and the complainant was Dr. Subramaniam Swamy. Then उस case whether a minister who is now not more a minister can be prosecuted without sanction of the state. एक व्यक्ति जो मंत्री था उसने जो घोटाला किया था और मंत्री पद से रिमूव कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ये तथ्य आता है सामने कि इसने जब ये मंत्री था तो पद का दुरुपयोग करके इसने ये ऑफेंस किया था। तो क्या उसके खिलाफ अभियोजन लाने के लिए स्टेट यानी कंसर्न प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी हो, एमपी के केस में प्रेसिडेंट, एमएलए केस में गवर्नर, क्या परमिशन आवश्यक है, सैंक्शन आवश्यक है? जी सर, वो अपने पद के कर्तव्य में निर्वहन किए थे और उनको लोक सेवक माना गया है, इसलिए नहीं, मगर अब नहीं है वो। ही इज नॉट मिनिस्टर नाउ, ही इज आम पब्लिक हो गए हैं, वो मिनिस्टर नहीं है। नहीं तो सर वो मिनिस्टर के ही रूप में कार्य किए थे, इसलिए उन पर लाने से पहले अनुमति जरूरी था। जरूरी था नहीं, आज अनुमति लेना है। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन चला नहीं, आज अनुमति लेना है। आज भी सर अनुमति लेना पड़ेगा क्योंकि वो उस समय भी जब मंत्री की हैसियत से ही कार्य किए थे। ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये 197 में है सर। क्या है 197 कहता है? न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के विरुद्ध अनुमति लेने की बात करता है। हु इज एंड हु हैज बीन, दो वर्ड है, आपका इसको ध्यान में रखिएगा। जी सर। हु इज और हु हैज बीन, जो मंत्री है या जो मंत्री रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट है या जो पब्लिक सर्वेंट रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस। मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी कोर्ट कोई भी मैटर जो था, मान लीजिए 5 लाख का मैटर था और उसको सीधे हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया, सिविल मैटर था, सीधे हाई कोर्ट में उसको कर दिया गया, तो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन जो दिया गया, क्या वो डिसीजन वैलिड होगा या वो वैलिड नहीं होगा? नहीं सर, वैलिड नहीं होगा। वैलिड नहीं होगा? नहीं होगा सर। प्रोविजन का ये वायलेशन? जी सर, ये सीपीसी के प्रोविजन का वायलेंस है। क्या बता सकते हैं आप कौन सा प्रोविजन? सीपीसी के प्रोविजन 6 में लिखा गया है, कोई भी बात सबसे निचली श्रेणी की अदालत में लाया जाएगा। ये सेक्शन 6 में बताया गया या किसी और सेक्शन में बताया गया? सर 6 या 9 सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, सेक्शन 15 में बताया गया। सेक्शन 6 में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात, ठीक है, धन संबंधी क्षेत्राधिकार की जो बात की गई है वो सीपीसी में। कितनी तरीके का क्षेत्राधिकार होता है सिविल कोर्ट का? स्थानीय क्षेत्राधिकार, धन संबंधी क्षेत्राधिकार, विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। अच्छा, अगर कोई भी कोर्ट विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार धारण नहीं करती, सब्जेक्ट मैटर से संबंधित जुरिस्डिक्शन नहीं है उस कोर्ट के पास में, और उसने डिसीजन दे दिया, तो ये डिसीजन जो होगा वो इनवैलिड होगा। किस सेक्शन में इनवैलिड होगा? ये सेक्शन 99, सेक्शन 99 में ये इनवैलिड होगा और इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुझे ये बताइए, अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी कई सारे कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है और वो डिस्प्यूटेड है प्रॉपर्टी, तो उसमें केस कहां पर किया जा सकता है? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी कई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस संपत्ति का कोई भी भाग स्थित है। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लखनऊ की प्रॉपर्टी और एक पर्सन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करता है जो किसी और सिटी में रहता है, मान लीजिए कानपुर में रहता है, तो सूट कहां पर इंस्टीट्यूट की जा सकती है? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या जहां पर डिपेंडेंट रह रहा है? मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सर ये विरोधी पक्षकार के ऊपर, ये जहां डिपेंडेंट जहां रहता है वहां फाइल कर सकते हैं या फिर जहां अचल संपत्ति से संबंधित दुष्कृति हुई है, दोनों जगह फाइल कर सकते हैं सर। सेक्शन 16 आपने पढ़ा है सीपीसी का? जी सर। क्या कहता है सेक्शन 16 सीपीसी? अचल संपत्ति जहां स्थित है वहां वाद लाया जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जहां पर डिपेंडेंट रह रहा है वहां पर भी किया जा सकता है। ये सर 19 में दिया गया है। ये मैटर तो 19 में जाएगा नहीं, ये तो वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है।
मूवेबल प्रॉपर्टी और बॉडी की बात करता, मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सर एक आखिरी सेक्शन है, उसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए दीपेन, जो चीज नहीं पता है उसमें सीधे सॉरी बोल दीजिएगा। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 16 का प्रोवाइजो, ठीक है, परंतुक जो दिया गया सेक्शन 16 में, वहां पर एक टर्म इस्तेमाल किया गया, पर्सनल ओबीडियंस टर्म का प्रयोग किया गया, ठीक है। और जब हम ये जो लास्ट क्लासेस देखते हैं सेक्शन 16 के, तो वहां पर जो बात की गई वो कॉम्पनसेशन की भी बात की गई, ठीक है। तो ये हालांकि एक मैटर टॉट का मैटर है, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये प्रोवाइजो में चला जाए। अच्छा, आपने अपना ऑप्शनल पेपर जो बताया है वो फैमिली लॉ बताया, ठीक है। क्या मुस्लिम महिला भी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकती है? जी सर, मुस्लिम महिला भी म्यूचुअल कंसेंट से बाद तलाक विवाह विच्छेद कर सकती है, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, एक में उसे पति से अनुमति लेनी पड़ती है, और दूसरे में पति और पत्नी दोनों पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं। इसे मुबारक कहते हैं। मुबारक। अच्छा, क्या पति अपने तलाक के अधिकार को अपनी पत्नी को ही ट्रांसफर कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है? जी सर, कर सकता है। कौन से तलाक में? तलाक ए तफवीज में। तलाक ए तफवीज में। अच्छा, हकसुफा क्या होता है? हकसुफा सर किसी संपत्ति संबंधित अधिकार होता है जो उसको खरीदने पर उससे उसके अगल बगल जो निवास रहता है उनको एक अधिकार दिया जाता है, एक अधिकार स्वरूप की प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। हकसुफा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर घर में परिवार में विभाजन होता है तो अन्य व्यक्ति जो उसके अगल बगल है उसको प्राथमिकता देके संपत्ति किसी अन्य के हाथ में हस्तांतरित नहीं की जाएगी। अच्छा, ये किसी हिंदू पर भी अप्लाई होगा जो ट्रांसफरी होगा? अगर ट्रांसफरी कोई हिंदू है तो उस पर भी अप्लाई होगा या केवल मुस्लिम पे ही अप्लाई होगा? ये सर ये मुस्लिम पे ही अप्लाई होता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक क्लास है कि संपत्ति को बेचने से पहले परिवार में ये शर्त लगाई जा सकती है कि वो परिवार से अन्यत्र बाहर व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। कौन सा सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का? सर सेक्शन 10 का, ये 10 का सर नहीं आता। 44। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी आपने केस, सर ने पूछा था केस आपसे, ठीक है, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने AR अंतुले के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोला। वो AR अंतुले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, वो RS नायक है, ठीक है, RS नायक। तो अगर नहीं जानकारी है तो आप सॉरी बोल दीजिएगा, लेकिन गलत आंसर मत दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जब एक मोमेंट के लिए भी आप साइलेंस रखेंगे तो बोर्ड ये समझ जाएगा कि आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा। तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है, किसी भी पार्टिकुलर का, ये नहीं कि सारे प्रश्नों का, किसी पार्टिकुलर का अगर नहीं आपको मालूम है तो आप वेरी पोलाइटली कह दीजिए कि सॉरी, और आई एम नॉट कलेक्टिंग, यार आई एम अनएबल टू कलेक्ट, ठीक है ना। आपका इससे जो है कोई नुकसान नहीं। ये कभी हमारे दिमाग में आया है, बड़ा एक इंटरेस्टेड केस आया था। आप कहाँ, आपका होम स्टेट बिहार है? नहीं सर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर। बड़ा एक इंटरेस्टेड केस आया था पटना हाई कोर्ट के सामने। उसमें जो है सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो गया, लेकिन डिवोर्स होने के और कोई इशू नहीं था। डिवोर्स होने के 3 महीने बाद उनमें थोड़ा सा आपस में आकर्षण बढ़ा, प्रेम बढ़ा, या कोई गिल्टी कॉन्शियस कुछ याद आया होगा। उन लोगों ने फैमिली कोर्ट के सामने अपीयर हुआ और कहा साहब हम लोग फिर रीमैरी करना चाहते। फैमिली कोर्ट ने कहा कि आपको कोई बार नहीं है, आप अगर रीमैरी करना चाहते हैं आप जाइए रीमैरिज करिए, मैरिज से कौन रोकता आपको। इस विश्वास पर वो हस्बैंड और वाइफ, यक्स हस्बैंड यक्स वाइफ के घर पे गए और उन दोनों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सब्सिक्वेंटली कुछ और डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से उसने मैरिज करने से इनकार कर दिया। देन वाइफ फाइल्ड FIR under section 376 IPC against the husband. What will you decide? अगर आपके सामने मैटर आए तो आप क्या डिसाइड करो? सर इसमें पति को अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? कि दोनों लोगों की सहमति थी तथा वो दोनों पक्षकार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने विवाह विच्छेद भी किया है। उसके बाद भी उन्होंने अगर इस तरह का कार्य किया तो अर्थात दोनों लोगों की सहमति रही होगी। सहमत किस कंडीशन में दिया? उस सहमति अगर सामान्य परिस्थिति में बिना किसी दबाव उत्प्रेरणा के अगर दिया हो। एक बार फिर केस को सुनिए। दोनों फैमिली कोर्ट के सामने अपीयर हुए और दोनों ने कहा कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा आप शादी कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों
वाइफ एक्स वाइफ के घर पे गए और इंटरकोर्स किया, इसके बाद हस्बैंड ने मना कर दिया शादी करने से, मैं शादी नहीं करूंगा। आप इस कंसेप्ट को भूल जाइए कि वो कभी पति पत्नी रहे हों। अब वो पति पत्नी नहीं है, आम नागरिक हैं। आर यू रिकलेक्टिंग सेक्शन 375 इंडियन पेनल कोड? अगर किसी महिला को यह विश्वास दिलाते हुए कि हम तुम्हारे पति हैं या हम तुम्हारे पति होने वाले हैं या हम तुम्हारे पति होंगे, छल से अगर इंटरकोर्स किया जाता है, then that will come in the ambit of rape. जी सर। तो ये in this case a husband shall be prosecuted under section 376 Indian Penal Code, क्योंकि marital tie has been disconnected, broken by a degree of the court. Neither he is husband nor she is wife, and both appear before the court, meaning thereby कि वाइफ को उसने इस कॉन्फिडेंस में रखा है कि वो दोबारा शादी करेगा और फिर फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है। तो मीनिंग thereby कि ही चीटेड, वो दिखाने के लिए कोर्ट के सामने गया और कहा कि हम शादी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वो अपना जो है काम बनाने के बाद फिर वो चला गया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट मामले में कहा है कि यह न्यायालय की सामाजिक दायित्व है और परम कर्तव्य है कि वह देखे उसके सामने जो सिविल मुकदमे हों उनको जहां तक संभव हो उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाए, चाहे इसके लोक अदालत का प्रयोग किया जाए, चाहे इसके काउंसलिंग का प्रयोग किया जाए। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में, जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, वो ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मामले यथासंभव उन्हें एमिकेबल सेटलमेंट से निपटा दिया जाए। तो ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने किस प्रोविजन की ओर इंडिकेट किया है? ये सीबीसी की धारा 89 के अंतर्गत। हाँ, सीबीसी की धारा 89। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है सर, ठीक, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा बहुत आपका। अच्छा इंटरव्यू रहा, विजेंद्र, ठीक रहा। आपने सारे प्रश्नों के जवाब बहुत संतोषजनक ढंग से दिए और तुम्हारी देह भाषा, प्रस्तुति, ज्ञान विषय का बहुत अच्छा है और हम लोग प्रार्थना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि अवश्य चयनित होंगे। हमारे बोर्ड मेंबर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ विपिन, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 5 लाख का मामला सीधे हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया, ठीक है, तो जब सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 6 में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया और वहां पर जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बताया गया उसमें ये बताया गया कि कोई भी कोर्ट अपने पिक्यूनरी लिमिट्स जो होंगे उससे ज्यादा का मैटर नहीं सुन सकता है, मतलब कम का वो सुन सकता है। ये एक इरेगुलरिटी है, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत सही हुआ है, ये एक इरेगुलरिटी है, लेकिन इस इरेगुलरिटी को सही किया जा सकता है सेक्शन 99, ठीक है। तो सेक्शन 15 उसका प्रोविजन ये करता है कि लोएस्ट ग्रेड की जो कोर्ट होगी तो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में मुकदमा फाइल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधे हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये सेक्शन 6 के प्रोविजन का कोई भी वायलेशन नहीं था, ये सीधे सीधे सेक्शन 15 के प्रोविजन का वायलेशन था। और इस पे एक केस भी था, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये एक केवल इरेगुलरिटी है, इससे डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इरेगुलरिटी जो है वो अब तो मैं आई कांट से अबाउट द पटना हाई कोर्ट, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो पूरा नोटिफिकेशन देकर इसको जो है जस्टिफाई कर दिया है कि अगर जजों की तादाद ज्यादा है और उनके बनस्पत मुकदमों की संख्या कम है, तो जैसे जो लोअर कोर्ट के केसेस को सिविल मैटर्स में लोअर कोर्ट में जितने पेंडिंग केसेस हैं उनमें आनुपातिक रूप से हायर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के वहां है 10,000 25,000 तक उनका जो है 1 लाख तक जो पावर है उनका, और अब वो सिविल जज के पास केसेस सुनने के लिए नहीं है, खत्म हो गया है, तो उनके वहां से केसेस को ट्रांसफर करके सिविल जज सीनियर डिवीजन को दिया जा सकता है। और ईश्वर करेंगे आपकी नियुक्ति होगी, आप नियुक्त होंगे। और बताइए आप पहला पद क्या मिलेगा आपको? व्हाट विल योर फर्स्ट पोस्ट? सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज जूनियर डिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय जूनियर डिवीजन? सर ये निचली श्रेणी के जो अदालत होते हैं उसको कहते हैं। हाँ, सब कहा जाता है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और आप हम लोगों का कमेंट यही है कि आप थोड़ा अपने को और कॉन्फिडेंट बनाइए, और जो सवाल आपको जानकारी ना हो, कोई आइडिया ना हो, तो आप वेरी पोलाइटली बोर्ड से
सॉरी कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके उलझाने के लिए। क्योंकि अगर आप इधर उधर से सवाल तलाश कर, क्वेश्चन आंसर तलाश करके उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे तो उतना ही आपको उलझाते जाएंगे और आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू उसी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पे खत्म हो जाए एंड यू विल कम आउट विद द रॉन्ग इंप्रेशन। सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था, इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं था सर, थोड़ा एक्सप्रेस कर। आपका पहला इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। ऐसे इंटरव्यू होता भी है और कोई बहुत अलग से इंटरव्यू के लिए प्लानिंग नहीं होती है। ये इंटरव्यू साक्षात्कार, यू आर बिफोर मी, आई एम बिफोर यू। Yes, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रिया, Yes, sir. अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Priya, and sir, I am from Uttar Pradesh, and I have completed my LLB in 2018. And sir, my hobbies are painting, so especially Madhubani painting. अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो आपने कहाँ से एलएलबी किया है? Sir, I have done my LLB from Amity University, Lucknow. तो आप ये बताइए कि जो को वारंटो की रिट होती है, ये किस मामले में जारी की जाती है? The quo warranto is a writ which is issued when it has been asked by what authority you are holding any public post. So in that case, quo warranto is Can you issued. give me some example? Yes, sir. For example, sir, whenever any substantial post is a person is holding, in that case, High Court or Supreme Court can ask by what authority or by what specification you are holding this. So to my knowledge, this is the example. हाँ, ठीक है, आपने सही बताया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज में आप अगर सेलेक्ट हो जाती हैं और बाद में यूपी पीसीएसजे में भी सेलेक्ट होती हैं, Yes, तो sir. आप अपने नेटिव स्टेट में आ जाएंगी बिहार। No, sir, for me, sir, my priority is to get early selection, and sir, whichever state give me a first opportunity to serve, I will definitely serve there. तो ये हाई कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, लॉ ऑफ एडमिरल्टी एंड लॉ ऑफ प्रोबेट मैट्रिमनी। Yes, sir. ये क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ एडमिरल्टी एंड व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोबेट मैट्रिमनी? Sorry, sir, I have to read about it. Priya, tell me, under what circumstances Yes, sir. the court has power to pass judgment under Order 8 Rule 10 CP? So when the written statement has been not filed in the given time, in that case, the court can proceed against the defendant and give judgment. So Order 10 and Rule 10 gives that authority to the court. What is distinction between judgment given under Order 8 Rule 10 Yes, sir. and judgment given under Order 9 in absence of the defendant? फर्क क्या? ये बताइए, अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 में जजमेंट Yes. क्या डिफेंडेंट की प्रेजेंस आवश्यक है? Sir, Order 8 Rule 10 में हाँ, क्या डिफेंडेंट की प्रेजेंस आवश्यक है? yes, sir. To my knowledge, so yes, sir. और अगर WS फाइल हो गया है तब भी जजमेंट हो जाएगा डिफेंडेंट के खिलाफ? ऑर्डर So, 10 का प्रोविजन बताओ, क्या है प्रोविजन, आप बताइए। सर वो 9 सब क्लॉज ऑर्डर 9 रूल 13 में है कि अगर डिफेंडेंट नहीं अपीयर होता है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, देन कोर्ट कैन प्रोसीड एक्स पार्टे. Not under Order 9 Rule 13. Under 9 Rule 13. Not under. Application has been sent, sir. It is given, sir, 6, I think, sir, 6 to my knowledge. Now tell me. I am hearing. You are coming on correct line. You say. Sir, in that case, in Sir Rule 6, it has been given when the summon was not duly served, then defendant should have been given extra time. And if the summon was duly served and the defendant does not appear, in that case, the court can proceed ex parte. And so for that, defendant has a plea that it can apply for the application for setting aside that judgment, that ex parte decree. And Order 8 Rule 10. So it is a failure of the defendant that he has not filed written statement. The written statement. When Yes. the defendant failed to file the written statement Yes, inside the due direction of the court, then court is empowered to pass judgment against the defendant. Defendant, yes, sir. Now, what will be the fate? Suppose the court pass judgment against defendant. Yes, sir. Whether the case of the plaintiff shall be decreed. So case of the plaintiff? No, sir. Sir, court can proceed against the defendant in that case.
On the pleading of plaintiff, the court can proceed. Sir, except is the person with the suffering disability. आप दोनों प्रोविजन को कंसंट्रेट करिए. Yes, sir. Under Order 9, if in spite due summons, defendant is absent, Yes, sir. court may proceed ex parte against the defendant. Yes, sir. Under Order 8, Rule 10, if Yes. the defendant fails to submit the written statement, then the court may pass judgment against the defendant. Yes, sir. So whether the suit of the plaintiff will be decreed or not. Yes, sir. Decreed in that case. Why? Sir, because the plaintiff has filed his pleading, sir, on the basis of that, the court can proceed. Except it has been given, sir, in Rule 5, Subclause 2 of Order 8 that it cannot go against the person suffering from disability. So otherwise, in general cases, it can proceed on the basis of the pleading of plaintiff. The simple answer is that under Order 8, Rule 10, Yes, sir. bound to pass the judgment against the defendant and in other way to decree the case of the plaintiff. Yes, sir. But here is not to proceed ex parte, here is to pass judgment against the defendant. Against the defendant, yes. Judgment against defendant may include in decree of the case. Yes, sir. What is the distinction between misjoinder and non-joinder of party? When the sir misjoinder and non-joinder of the parties is given, sir, Order 1, Rule 9. In that case, the misjoinder is when in the contravention of Rule 1 and Rule 3, a party has been joined. Or non-joinder of party is when the necessary or proper party is not joined in any suit. In that case, it will be a non-joinder of parties. And non-joined, in case of non-joinder of the party, what will be the result of the case? So non-joinder, yes. अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इसमें आवश्यक पक्षकार का संयोजन नहीं हुआ है, नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं किया गया है, then what is the step before the court? So no decree shall be reversed or varied if the non-joinder of parties, but it will not apply to non-joinder of necessary party. It is given in Section 99A. The case is still pending. Decree Yes, sir, 99. Sorry, sir, 99. Case is still pending, and the court comes to the conclusion that here is a non-joinder of necessary party. Yes, sir. Then whether court cannot give direction to the plaintiff to add the newly defendant or not. So court can give. कोर्ट के कंक्लूजन पे आता है कि Yes. स्टेट गवर्नमेंट इसमें आवश्यक पक्षकार है. Yes, तो क्या sir. कोर्ट को ये पावर है कि वो प्लेंटिफ को डायरेक्शन दे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पक्षकार बनाइए? Yes, sir. Sir, it has power. अंडर व्हिच प्रोविजन? Sir, Order 1, Rule 10, sir. करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी 10, yes, sir, 10. अंडर सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट. Yes, sir. What are the circumstances under which the statement given by a dead person Yes, sir. who dies subsequently after his statement Yes, sir. went before the court? Sir, since in the case of Pagla Narayan Swami versus King Emperor, it has been given, it is immaterial that a person was in expectation of death or not. The statement given by a person, in that case also will amount to, in that case will amount to dying declaration and will be relevant under No, section. I am not asking dying declaration. I Yes, am sir. asking the conditions given under section 32 of the evidence. Yes, sir. And what are the conditions? How many conditions have been given in the Evidence Act under section 32? That in Yes. that situation, the statement of a dead person is relevant. So when he is dead, he cannot be found. He is dead. Yes, Number sir. one. Number two, Not be found. He cannot be found. He is incapable of giving evidence, and sir, his attendance cannot be secured without unnecessary delay. and other. So, 4 circumstances are there, and his statement will be relevant in the cases when it relates to cause of his death or any of the statement made in the course of the business against his interest, for any custom or right, establishing any relationship, also will and probate. And so 7th one is a transaction made under section 13, and 8 is a several person
of different opinion. Now I put another question. Yes, sir. Whether a case on behalf of a minor plaintiff can be filed before the court. Sorry, sir. Sir, I couldn't. Whether So- any suit can be filed by minor before the court. Sir, yes, sir. Can माइनर प्लेंटिफ की ओर से मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है. सर लीगल गार्जियन के थ्रू फाइल किया जा सकता है. लीगल गार्जियन के थ्रू फाइल किया जा सकता है. Yes, sir. 32 order 32. और नेचुरल गार्जियन. Yes, sir. Natural guardian or sir legal guardian. What is distinction between natural guardian and legal guardian? Sir, legal guardian is by initial stage it is serving his interest, but natural guardian is that, and sir legal guardian is a guardian which is nominated by the court. Which is appointed by the court. Appointed by the court. Sorry, sir. Appointed by the court under which act? So juvenile. No. Under Sorry. Guardian and Wards Act. Guardian on what side? Yes. Guardian and Wards Act. And if there is no any natural guardian, Yes, sir. the duty of the court to appoint a legal guardian, a guardian to file to pursue the case under Yes, sir. Guardian and Ward Act. What's act? Now suppose if the case is not decided by the court, Yes, sir. but the party entered in a compromise, Yes, sir. whether a compromise can be entered into on behalf of the minor. Whenever it is protecting its interest, then it can be done. But otherwise, if it has gained some consideration or having an interest against the minor, then it cannot be compromised. Your answer should be yes. Compromise can be entered provided it should be in the welfare of the minor, Yes, sir. not against his interest. Interest. Yes, There sir. are two conditions mentioned under order 23. 23. Under order 23 CPC, Hmm. compromise can be entered on behalf of the minor, Yes, sir. provided it should be in interest of the minor Yes, sir. and for his welfare. And for his welfare. Of the minor and in his interest. Yes, sir. क्लियर. Yes, अभी sir. हाँ, आपसे सर ने ऑर्डर 8 रूल 10 पे क्वेश्चन पूछा था. Yes, sir. आपने जवाब दिया कि कोर्ट जो होगा कोर्ट जजमेंट दे सकता है. क्या Yes, sir. देना कोर्ट के लिए मैंडेटरी है या कोर्ट और भी ऑर्डर दे सकता है? So और भी ऑर्डर दे सकता है. कुछ ऐसा मेंशन कर रखा गया है रूल 10 में? No, sir. Sir, I don't recall at this moment. चलिए, इसमें टर्म इस्तेमाल किया गया एज इट थिंक्स फिट. Yes, sir. थिंक्स फिट ये टर्म इस्तेमाल किया गया रूल 10 में. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए रेस जुडिकेटा क्या होता है? Sir, res judicata is embodied in section 11 of CPC. And sir, in that case, it has been there that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter indirectly and substantially in issue in previously in former suit between the same party and under the same title. ठीक. चलिए, मुझे Yes, ये sir. बताइए कि Yes, sir. एक पर्सन जो था उसके पास में 2 रिलीफ मांगने का अधिकार, वो 2 रिलीफ मांग सकता था कोर्ट से, लेकिन उसने एक रिलीफ कोर्ट में क्लेम किया और दूसरे रिलीफ के बारे में कोर्ट में क्लेम नहीं किया. Yes, sir. क्या ऐसा पर्सन सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है दूसरा रिलीफ क्लेम करने के लिए? Sir, as per rule, order 2, rule 2, every plaintiff shall continue, the suit shall continue, include the whole claim. And sir, in that case, sir, it's one of the exception is that if any of the claim is not mentioned in order to bring the jurisdiction of the court, in that case, further relief can be given that he can file a suit for that claim. अच्छा, चलिए मान लीजिए एक पर्सन ने अपने घर के पोजीशन के लिए सूट फाइल किया Yes, sir. और मिसने प्रॉफिट का उसने कोई जिक्र नहीं किया. क्या मिसने प्रॉफिट के लिए फर्दर सूट फाइल कर सकता है वो? No, sir. नहीं कर सकता. No, sir. कौन सा प्रोविजन रोक लगाता है इस पे? So order section 11 sub explanation 4 as well as order 2 rule 2.
अच्छा, एक्सप्लेनेशन 4। देखिए, एक्सप्लेनेशन 4 तो इश्यूज की बात करता है, मैं तो रिलीफ की बात कर रहा था यहाँ पे। तो क्या Yes. इश्यूज से रिलीफ जो होता है, क्या इश्यूज के पॉइंट से रिलीफ को डायरेक्ट किया जा सकता है? Yes, sir, it can be. तो फिर रिलीफ के बारे में अलग से प्रोविजन एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में क्यों किया गया? Yes, sir. Sorry, sir. देखिए, रिलीफ एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में रिलीफ की बात की गई है और वो बात करता है इश्यूज की। और जो Issues. मैंने मेश ने प्रॉफिट की जो बात की है वो Yes. एक रिलीफ है, ठीक है। मेश ने प्रॉफिट में कोई रोक नहीं, ऑर्डर 2 में ही बताया गया मेश ने प्रॉफिट के लिए दूसरी सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अगर दो लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है, क्या इस पे भी रेसिप्रोकेट अप्लाई होगा? डिक्री आई है कंप्रोमाइज से। Yes, sir, I think so, sir. Consent decree होगी, sir, वो एक। मैं पूछ रहा हूँ रेसिप्रोकेट इस पे अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा? Yes, sir, होगा। अप्लाई होगा। देखिए, जब आप रेसिप्रोकेटा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि पार्टीज मस्ट बी हियर एंड फाइनली डिसाइडेड। कोर्ट जो Yes. मैटर को फाइनली डिसाइड करेगा। क्या यहाँ पर पार्टीज को सुना गया है? Yes, sir, with their understanding, they have compromised a suit, they have settled their claims. So it will follow decree and binding decree. हियरिंग का ये मतलब नहीं, हियरिंग का Yes. मतलब ये नहीं कि वो कंप्रोमाइज करे। हियरिंग का मतलब वो अपनी अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं, ये है हियरिंग का मतलब। तो Yes. उस सेंस में तो हियरिंग को लिया नहीं गया, Yes, sir. तो इस पे अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा? Sir, I will read about it. I'm not sure about it, so I will. ठीक है। Okay. अबेटमेंट ऑफ द सूट क्या होता है? सर, डेथ और किसी और इंटरेस्ट के कारण अगर सूट क्या कहते हैं डिसमिस करने की स्थिति में आ जाता है तो उसको अबेटमेंट ऑफ द सूट बोलते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा रिवाइज करना है इसको, ये वाला पॉइंट। यस सर। अच्छा, ऑप्शनल पेपर्स क्या थे आपके? सर, फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सेकंड सर टीपीए एंड इक्विटी ट्रस्ट एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है? यस सर। कोई केस वगैरह था या कोई अमेंडमेंट वगैरह के थ्रू ये सब चीजें जोड़ी गई? सर 15 सब क्लॉज 5 93rd अमेंडमेंट 2005 से जो ऐड हुआ था कि सर वेदर एडेड और नॉन एडेड और पब्लिक और प्राइवेट except a minority institution. So sir, in that due to that substantive power it has been given that private institution में भी reservation दिया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, तो जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दिया जा सकता है तो इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 19(1)(g), ये तो आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फंडामेंटल और फंडामेंटल राइट में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। सर 19(1) में भी सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो सर इन दैट केस इट इज आल्सो वैलिड 93rd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, तो इस आधार पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है? यस सर। कोई केस वगैरह था? यस सर, केस है इस पे सर। आई विल टेक अ मिनट टू रिकॉल। तो ठीक, सर एम नागराज का केस एम था। नागराज का केस, प्रमोशन वाला। एम नागराज का केस नहीं था। एम नागराज के केस में बहुत सारी चीजें हेल्ड की गई थी। एक तो रिजर्वेशन से भी संबंधित था और एम नागराज के केस में सीधे ये भी कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्रेस प्रोविजन से बाउंड नहीं है। ठीक है। Yes. हाँ, तो Yes. आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। यस सर। ठीक है प्रिया, योर इंटरव्यू इज ओवर। Your interview You over. have done Very quite well. Yes. बहुत अच्छा किया। And maintain your this current. यस सर, डेफिनेटली सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। God bless you. गुड लक। थैंक यू सर। That we will see one day you as a judge. यस सर, डेफिनेटली सर, आई विल कम देयर। आप मिठाई खिलाने की तैयारी करो, ठीक है प्रिया? हाँ सर, सॉरी। यस सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। Very good evening, Devanand ji. जैसे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दिवानंद, ये बताओ मुझे कि प्ली बार्गेनिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्ली बार्गेनिंग? सर, प्ली बार्गेनिंग is a concept which has been evolved in year 2006 by after the recommendation of Malimat committee. It is a concept where the accused person agree write an affidavit that he understands the Mr. Jha, please. Whether it is concept or it is arrangement. ये concept है या arrangement? Sir, it is a kind of arrangement, sir. Earlier it was. Why are you saying concept?
yes, हाँ। yes. हाँ बताओ। हाँ बताइए बताइए बताइए। ठीक करे, मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ये Yes, sir. कंसेप्ट नहीं, अरेंजमेंट है ये। सर ने आपको करेक्ट किया ऑनरेबल सर। Yes, yes. हाँ प्लीज बताइए क्या है प्ली बार्गेनिंग। Sir, in this, sir, the accused person states in an affidavit that he understands the offense which he have committed and agrees for the mutually satisfactory disposition with the accused, with the public prosecutor or with the victim and the other police officer, if investigating officer. And after that, he been convicted for the lesser offense. किन किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है? Sir, plea bargaining can be done if the offense have been committed which is less than 7 years of punishment, if it has been police report or on a complaint cases, if the case has been instituted and the offense is basically is of less than 7 years, not more than 7 years, and it cannot also be committed where the offense has been committed for against the child, against the woman, or it is also against the socio-economic offenses. अच्छा, In these cases there cannot. ओके, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बोर्ड के बारे में सुना है आपने? जुवेनाइल की एज में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या है जुवेनाइल? Yes, sir. Sir, section 232 subsection 35 defines the term juvenile in the JJ Act 2015, where it is said that a person below the age of 18 years will be called as juvenile. But when we go to the strict definition of the term juvenile, it is that the person who is between the age of 16 to 18 years, then that person can be called as a juvenile who have committed a heinous offense. And the term heinous offense also been defined in that particular act, which says that any person who is committed such offense with a minimum of 7 years with the punishment provided, then that maybe heinous offense. Yes, and juvenile justice board, sir. Yes, sir. It is mentioned in section 4 of the JJ Act, which provides that there will be a principal judge. Yes. So if a juvenile between 16 to 18 years commit a heinous offense, will he be tried Yes, under Juvenile Justice Act or under which provisions? Sir, there is a specific provision under section 15 of the that 15 subsection 3, which provides that JJ board will, after making a preliminary inquiry, will transfer that case to the children's court, and that children's court, after making a preliminary assessment, if he should be tried as an adult, then that board will then that court will try the offender as an adult. Otherwise, he will try it as a juvenile. Yes. सर झा साहब, आपने जस्टिस टीएस सिंह का नाम सुना है? जस्टिस टीएस ठाकुर, तीर्थराज सिंह ठाकुर। तीर्थराज सिंह साहब ठाकुर। No, sorry, sir. एक प्ली बार्गेनिंग के मामले में Yes, sir. जब जस्टिस टीएस ठाकुर साहब लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, Yes. No butter can be drawn from the curd made of a adulterous milk. मिलावटी दूध से बनी हुई दही से हम मक्खन नहीं निकाल सकते। Yes. ये किस पर कहा था, किस पॉइंट पर कहा था? टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान और लीगल जो मैगजीन्स हैं या सब में बड़े बोल्ड अक्षरों से प्रकाशित हुआ था। और मुश्किल से मेरा ख्याल है कि ये 4-5 साल पहले की बात, पूरा हाईलाइट हुआ था। जितने चैनल थे वो भी सब चीज को इस पे कर रहे थे। 2015-16 की बात, 15-16 की बात है। कहा था कि मिलावटी दूध से जो दही बनी है उससे हम मक्खन नहीं निकाल पाएंगे। ये किस पर कहा था? Sir, I exactly do not know, sir, but I can guess. That was the manner of investigation. Yes, sir. I was. उनके कहने का मतलब ये था कि जब तक विवेचना ईमानदार नहीं हो, yes, yes. और सही अभियुक्त को नहीं पकड़ा जाए, एक yes, गलत इनोसेंट आदमी को मुलजिम बना दिया जाएगा, तो कैसे प्ली बार्गेनिंग करेगा? yes, प्ली बार्गेनिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक्यूज रियल एक्यूज हो, एक्यूज इन ट्रूथ हो। yes, yes, ये बात yes, sir, yes, sir. कही गई। Yes, sir. Yes, sir. This is a flaw. I think that it can be. अच्छा, जहां साहब ये बताइए
Yes, sir. एक मूवी आई थी जाली LLB 2, आपने देखा Yes, है? sir. आपने Yes, sir. देखा? Yes, sir. मैंने देखा। कितने बार देखा? सर मैंने एक बार ही सर देखा। एक बार देखा। उसमें एक सीन मैं आपको बताता हूँ। Yes, sir. एक जो है जम्मू कश्मीर से एक पकड़ के आया था सिपाही, Yes, sir. इसलिए वहां पर जो माथुर एडवोकेट का रोल कर रहा था उसने धरना तक दिया था। Yes, sir. फिर इसके बाद उसने एक दिन का डेट दिया, सुंदरलाल तिवारी जी ने, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि देखो माथुर साहब, आपने धरना कर लिया, आपने विरोध किया, लेकिन मैं इस गवाह का बयान रिकॉर्ड करूंगा। ये कहा था ना? प्रोविजन में कहा था। सर section 311 of the CRPC. Very good. Section 311 CRPC that the court may examine at any stage any witness relevant to the case and present before the court. Yes, yes. शिवानंद, मुझे ये बताइए, सेक्शन 311 में कोर्ट जो है, कोर्ट को किसी भी नए विटनेस का एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी या ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर? सर इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द। यस। अच्छा, क्या किसी भी कंडीशन में मैंडेटरी नहीं हो सकता? सर दो सर इट इज डिस्क्रिशनरी बट इट कैन not be mandatory, but if the judge thinks that it is a circumstances have arise such that the evidence of the witness is so important that then it can affect the case, merit of the case, and in that case judge can take, and the last word I am not able to recall, it is that interest of justice or for the just decision of the case it is necessary. ध्यान रखिएगा, जहीरा हबीबुल्लाह शेख का मामला है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ इट इज शोन बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रूव नहीं है, शोन बाय द प्रोसिक्यूशन टू द जज दैट दिस विटनेस इज डिसाइडिंग एविडेंस इन ए पार्टिकुलर केस, देन कोर्ट इज बाउंड टू टेक द एविडेंस ऑफ दैट। एक चीज और बता दीजिएगा। यस सर। रिटन स्टेटमेंट कब पेश कर देना चाहिए, कितने दिनों में पेश कर देना चाहिए डिफेंडेंट को? Sir, it is normally in general it is 30 days, but it can be extended more after 30 days. That is 60 days more. It is in total 90 days. Yes, sir. But in commercial matter, it is mandatory that in 120 days it should be filed. But in normal circumstances, it is 90 days maximum period. If he does not produce his written statement within the period of 19 days, तो 90 days के बाद में भी अगर नहीं कर पाया तो क्या उसके बाद में भी कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है? Yes, sir. If there is sufficient reason shown that he has been precluded from presenting the written statement, but there is a strict provision which is Order 8 Rule 10, which specifically provide that if the penalty defendant fail to present the written statement, then in the court may pronounce the judgment. Okay, very good, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा किया। सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दिए। जैसे थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। हम सब लोगों को पूरी उम्मीद, पूरा भरोसा है तुम्हारा सिलेक्शन जरूर 101% होगा। हम सब लोग तुम्हारे if sir you permit then I can ask one question sir. हाँ बिल्कुल। Sir, during an introduction sir, I am having a confusion that whether because I am a 2019 pass LLB and when I filled the form in year 2020 then I was pursuing my LLM and I haven't mentioned the LLM in the whole journey, and at present I am pursuing my बिल्कुल न बताना मैंने LLM किया है या कर रहे हो 90 में LLB किया है, कह दो सर मैं तब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके मैं PCSJ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो कहेंगे कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं कुछ के साथ, कुछ नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। LLM मत बताना। अगर LLM वो चक्रव्यूह है कि जिसमें घुस तो जाओगे उसका भेदन नहीं कर पाओगे, ये समझ लीजिए। बताना। Yes sir. At present I am also pursuing PhD from Delhi University. आपका ओवरऑल अपीयरेंस इतना इनोसेंट है कि इंटरव्यू बोर्ड तो आपको देखते ही खुश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।